محترم سرپرست صدر جلسہ مودی حضرت حضرات عزیز طلباء و طالبات، محترم سرپرست صدر جلسہ مودی حضرت حضرات عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ درجہ اطفال اور نرسری کے طلباء و طالبات، محترم سرپرست صدر جلسہ مودی حضرات عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج درجہ اطفال اور نرسری کے طلباء و طالبات کا دینی سوالات کا ایک چھوٹا سا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ ماہرہ فاطمہ۔ ماہرہ فاطمہ، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ درجہ نرسری۔ آپ سورہ فاتحہ سناؤ۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب والضالین، آمین۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عائزہ فاطمہ۔ عائزہ فاطمہ، آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ نرسری۔ بولو نرسری۔ آپ 5 انگلیوں کے نام بولو۔ السلام علیکم، انگلیوں کے نام: جنت، امانت، آمین۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حبیبہ فاطمہ۔ آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ درجہ نرسری۔ آپ اول کلمہ سناؤ۔ اول کلمہ: طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ادھر بیٹھیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ایان خان۔ آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ جگپال۔ آپ سورہ کا ترجمہ سناؤ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واقعہ کیا؟ ان کی تدبیر کو مٹی میں ملا کر ان کو ناکام کر دیا اور ان پر ایسے پرندے کے جھنڈ بھیجے، پرندے ان پر ہم نے پتھر سے پتھراؤ کیا جو کہ پتلی مٹی سے بنے تھے، پھر انہیں کھانے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولے حکمت اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کون سی کلاس میں؟ آپ کلمہ اور اس کا ترجمہ سناؤ۔ شہادت میں گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محمد رسول ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ منہا فاطمہ۔ آپ کون سی کلاس؟ ہم افعال۔ آپ سورہ کوثر اور اس کا ترجمہ
कलमा सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना तेरा कल कौसर फसली रब्बी का वधर इन्ना शादा को वाला बुतर चिल्ला के नाम से जो हमारा मेहरबान धीरे वाला है बेशक हमने कौसर दे दिया बस आपके रब के लिए नमाज पढ़ी और इबादत कीजिए बेशक आपका दुश्मन देना वो निशान है। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? आना परवीन। आप कौन सी क्लास में? अर्जा फाल। आप हदीस नंबर 4 सुनाओ। हदीस नंबर 4 अस्सलाम वालेकुम सलाम कर मुसलमानों को जिसे तुम जानते करना चाहते। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? लीजा फातिमा। आप कौन सी क्लास में? नर्सरी। आप सोने की दुआ सुनाओ। सोने की दुआ आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम। आप कौन सी क्लास में हैं? अटफाल। आप सूरह अल-असर सुनाओ। सूरह सभी कृष्ण नजीला अमन वामरे चलाती वतवाचो बलक वतवाचो बसर। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल कादिर। आप कौन में? आप आपका नाम क्या है? अबू हुरैरा। आप कौन सी क्लास में हैं? दर्जा अफ़्ज़ल। आप आयतुल कुर्सी सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुहु व ला नौम लहु मा फ़ी समावाति वल अर्ज़ि बज़्ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ज़ुम्मा वल अर्ज़ि बज़्ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिमा शाअ वासिया कुर्सियु समावाति वल अर्ज़ि अलील अजीब। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? नर्स। आप कौन सी क्लास में? नर्सरी। आप पानी पीने की दुआ सुनाओ। आपका नाम क्या है? अलहम। आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी। आप हदीस नंबर 2 सुनाओ। हदीस नंबर 2 नौमु सुवाती यमनो रिस्का राते उसका सोना रिस्को नो। माशाअल्लाह। एक लड़की। आपका नाम क्या है? आप कौन नर्सरी में? आप हदीस नंबर 1 सुना। हदीस नंबर 1 नंबर हमारे मिलने आके हमारे गाड़ी में माशाअल्लाह सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से दुआएं हदीसें और सूरतें सुनाई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह अभी जमात अतफाल के बच्चों ने आपके सामने दीनी मुकालमा पेश किया। इसके बाद मैं दावत देता हूँ आमिना शोएब खान जमात अव्वल से कि वह आए और अक़वाल ज़रीन पेश करें। आमिना शोएब खान। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सदर जलसा, मोहतरम सदर जलसा, मेहमान खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने अक़वाल ज़रीन पेश करना चाहती हूँ, लिहाजा बगौर समाअत फरमाइए। नंबर 1, खुश कलामी सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जाती है। नंबर 2, अल्लाह का डर हर के डर को मार देता है। नंबर 3, ज़बान की हिफाजत करना ज़रूरी है। नंबर 4, माँ बाप का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नंबर 5, नेकी कभी रहेगा नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह अभी आमिना शोएब खान आपके सामने अक़वाल ज़रीन पेश कर रही थी। मौजूद हाज़रीन, अब तक हमने बच्चों के मुताबिक तालीमी व निसाबी मुज़ाहिरे मुलाहिज़ा कर चुके हैं। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी अपने कीमती ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। Quay ra đây rồi. Đâu? मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो खामोशी इख्तियार करें। अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी आपके सामने अपने कीमती ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं सबसे पहले दावत देता हूँ हमारे काबिल एहतराम सदर मुदर्रिस शमसुल उलूम अपर प्राइमरी स्कूल जनाब शेख मुख्तार साहब को कि वह इफ्तिताई कलिमात पेश करें। जनाब शेख मुख्तार साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सूरह रात। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, सुनो दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। मोहतरम सदर जलसा गुलाम अहमद खान साहब, मौजूद लेक्चरार जीएन आज़ाद उर्दू डीएड कॉलेज, मेहमान खुसूसी मोहतरम अकील मिर्ज़ा साहब, सदर मदरसा शमसुल उलूम उर्दू स्कूल, मोहतरम शोएब अहमद साहब, रुकन इंतज़ामिया शेख इब्राहिम साहब, साबिक हमारे सदर मुदर्रिस अब्दुल वहाब साहब, मोहतरम इदरीस खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इंतज़ामिया शमसुल उलूम उर्दू स्कूल पुसद, मोहतरम मुफ्ती कलीम रहमानी साहब, रुकन इंतज़ामिया, और हमारे दावत पर बहुत ही अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए मौजूद मेहमान और मोहतरम असातिज़ा अजीज़ तलबा व तलिबात और बहुत ही मौजूद सरपरस्त मर्दा और ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों का है, इसलिए 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात रखकर यहाँ से रुखसत लूँगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है
کہ तकरीबन 6-7 साल के बाद हमको ये प्रोग्राम लेने का अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी और हमको ताकत भी बख्शी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और अजीज़ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, सालाना जलसे का मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसमें निखार पैदा होता है, वो सलाहियतें हमारे सामने उजागर होती है, इनकी तलबा की हौसला अफजाई होती है, तलबा के अंदर की मायूसी ख़त्म होती है, बच्चों में इत्तेदाद बढ़ता है, ज़ौक़ और शौक़ में इजाफा होता है और साथ ही तलबा की हमाजहत तरक्की होती है। इसके अलावा मौल्लिम की जो मेहनत है वो अवाम के सामने आती है। मोहतरम हज़रात, साल के शुरू में हम जब स्कूल की जब प्लानिंग की थी उस वक्त हम सभी असातिज़ा ने ये तय किए थे कि इंशाअल्लाह इस साल हम सालाना जलसा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सभी मुदर्रिसीन प्राइमरी के भी और हाई स्कूल के इन सब ने 1 महीने से मेहनत की है। अब आपसे गुजारिश ये है कि ये जो बच्चे टूटे फूटे अंदाज में यहाँ पर जिस भी तरह की तैयारी की है, ये जो पेश कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाए। खास बात यह है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नर्सरी और अतफाल को पढ़ाने वाली बहनों ने भी खूब मेहनत की और उन बच्चों को भी तैयार किया। मोहतरम हजरात और ख़वातीन, स्कूल की चंद सरगर्मियाँ बताकर मैं अपनी जगह लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने मैथ एग्जीबिशन लिया। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ हमारी मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से हमने एक तहरीरी मुकाबला लिया और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को इनामात भी दिए। इसके अलावा टीचर्स डे मनाया गया, उसमें भी अव्वल दुवम सुवम आने वाले तलबा को इनामात दिए। अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा पंजम की स्कॉलरशिप की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ओलंपियाड के जो मुकाबला जाती इम्तिहान होते हैं उसमें भी हम बच्चों को बिठाते हैं। इन सब के पीछे मकसद ये होता है कि आप और हम मिलकर बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके ताकि वो एक समाज के लिए अच्छा एक शख्स बन सके। ये चंद बातें थी जो इस वक्त इफ्तिताई कलमात में आपके सामने रखना थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जिस मकसद को लेकर उठे हैं, जिस मकसद के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उन सब में हमको कामयाबी अता करे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम इंजीनियर शोएब खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी इंतज़ामिया को, कि वह आए और अपने कीमती ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने हमें इस बाबरकत महफिल में शरीक होने की और बच्चों की सलाहियतों को देखने का मौका अता फरमाया। वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अब तक जो बच्चों के हमने कारकर्दगी देखी, उनकी परफॉर्मेंसेस देखी, दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनतें की और हम सबके सामने प्रेजेंट किया। यकीनन ये बच्चों की मेहनतें ही नहीं है, इसके पीछे आप तमाम की कोशिशें भी हैं, खुसूसन असातिज़ा इकराम की भी। असातिज़ा ने पूरी 1 महीने की सरगर्मियाँ, पूरी 1 महीने की मेहनतें उसके ऊपर में सर्व की। असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन ने और खुसूसन हमारी माओं ने, हमारी यहाँ पे जो माएँ और बहनें बैठी है, उन्होंने भी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी और उनकी तैयारी करवाकर उनको यहाँ पर भेजा है। पिछले कई दिनों से हम देखते थे कि माएँ बच्चों को रात में तकरीरें याद करा रही है, उनकी नज़में याद करा रही है। तो वाकई ये बहुत मतलब काबिल मुबारकबाद है कि हमारे वालिदैन ने भी और हमारे असातिज़ा ने भी इसके अंदर में बहुत अहम रोल अदा किया है, जिसका नतीजा और जिसका रिजल्ट हम लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं। उसी के साथ मैं इंतज़ामिया की जानिब से हमारे आज के इस मजलिस के सदर मोहतरम गुलाम अहमद सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ وہ ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر بچوں کی ہمت افزائی کی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آج کے اس جلسے میں بچوں کی صلاحیتیں دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس علم کے فریضے کی ادائیگی جو ہے وہ بالکل صحیح سمت کے اندر میں جا رہی ہے۔ آج کے جو پرفارمنسز ہم نے دیکھی ہے وہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے بچوں کے اندر میں دینی تعلیم کا کس حد تک مطلب حساس ہے کہ بچوں کے اندر میں دینی تعلیم ہمارا ادارہ دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سیرت نبوی سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بے حد شفیق ہوتے، بے حد شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، اور وہی چیز ہمارا ادارہ جو ہے بچوں کے اندر میں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز سامعین، میں سوسائٹی کی جانب سے یہ بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی، ہماری انتظامیہ جو ہے وہ صرف تعلیم کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ اچھا کردار، نظم و ضبط اور اخلاقی اقدار اس کا لازمی حصہ بنانے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ کوشاں رہیں گے۔ سوسائٹی جو ہے، انتظامیہ جو ہے مندرجہ ذیل منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے۔ وہ بچوں کے تعلیم، اخلاقی تربیتی پروگرامز، ان تمام کے اوپر میں خصوصی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ اس میں اساتذہ کی نشستیں بھی لیتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ بچوں کا پرفارمنس کیسے ہو، بچوں کے پرفارمنس کو ہم لوگ کس طرح انہانس کریں، کس طرح اس کو امپروو کریں۔ اس کے لیے انتظامیہ مسلسل کوشاں ہے اور مسلسل اس کے لیے محنتیں کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کمزور بچوں کے لیے بھی اساتذہ کے ساتھ میں ہم لوگوں نے نشستیں کی، اور کمزور بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کمزور بچوں کے لیے مسلسل ہم لوگ محنتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ کمزور بچے جو ہے وہ بھی آگے بڑھے اور وہ بھی اپنے اوپر میں فوکس کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسلسل پیرنٹس کے ساتھ میں بھی نشستیں منعقد کرتے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس کے ساتھ میں بھی ہماری نشستیں، کوشش شروع ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ میں بھی ہماری نشستیں ہوں، اور اس نشست کے اندر میں ہم ان پیرنٹس کے سامنے ان طلباء کی مطلب کارکردگی رکھ سکیں۔ عزیز سامعین، عزیز پیرنٹس، عزیز اساتذہ، ہم اس بات کا مطلب آپ لوگوں سے بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اپنے بچوں کا خصوصی فوکس کریں۔ اب یہاں پر بچے تو دن بھر محنت کر رہے ہیں، 11 سے 5 ان کا اسکول ہوتا ہے، اساتذہ بھی ان کے اوپر میں بہت زیادہ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری جانب سے کچھ کمیاں رہ رہی ہے۔ اب آج کے اس مجلس میں بھی ہم دیکھیں تو 60% ہم کو خواتین نظر آ رہی ہیں، 70%، اور 30% صرف جینٹس پیرنٹس ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم دونوں کی بھی ذمہ داری ہے، والد کی بھی اور والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر میں خصوصی فوکس کریں۔ آج کا دور جو ہے ترقی کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، اور اس کمپٹیشن کے دور میں والد کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور والدہ کو بھی اس کا رول اپنا پلے کرنا ہوگا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ والد جو ہے گھر میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں کنٹینیوس موبائل میں لگا رہتا ہے، والدہ جیسے تیسے مطلب کوشش کرتی ہے، گھروں کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ بچوں کے اوپر میں تھوڑا بہت وقت دے پاتی ہے، لیکن والد کا یہ رول ہو رہا ہے کہ وہ گھر میں آنے کے بعد میں موبائل پر مسلسل موبائل اسکرین کے اوپر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میری خصوصاً مطلب جو مرد حضرات ہیں، مرد سرپرست ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ والدہ تو وقت دے ہی رہی ہے، آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو والد سے بھی سوال ہوگا اور والدہ سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو بہترین اولاد عطا کی تھی، ہم نے آپ کو بہترین اولاد عطا کی تھی، آپ نے ان کی تربیت کس طرح کی۔ تو اس وقت ہم ایز اے مرد سرپرست اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ میں نے اپنے بچے کی کتنی تیاری کی، میں نے اپنے بچے کا مستقبل سنوارنے میں کیا کیا رول کیا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اساتذہ بھی یہاں پر محنت کر رہے ہیں،
स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी यहाँ पर आकर मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत करने की, थोड़ी सी मेहनत करने की जो ज़रूरत है, जो जिम्मेदारी है, वो सरपरस्त हजरात की भी है। मुबारक कापड़ी साहब हमेशा एक मिसाल देते हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी, एक कॉरपोरेशन की मिसाल देते हैं वो, कि कॉरपोरेशन के एक आदमी मुसलसल जो है, दो आदमी आते हैं और वो गड्ढा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक मैदान के अंदर में वो गड्ढा करते हुए आगे चले जाते हैं। उसके बाद में दूसरे दो आदमी जो होते हैं वो गड्ढे को वापस मतलब पैक करते हुए जाते हैं, गड्ढे को मूछते हुए चले जाते हैं। फिर कुछ लोग आकर उनको पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, आप लोग जो है गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरे आदमी उस गड्ढे को मुचाते जा रहे हैं। तो मुबारक कापड़ी साहब उसकी बहुत अच्छी मिसाल देते हैं कि पहला जो आदमी होता है गड्ढे खोदने वाला, वो उस्ताद होता है, और जो बाद में दूसरा फर्द होता है जो गड्ढों को मूछने वाला, वो स्टूडेंट्स होते हैं, तुलबा होते हैं। तो वो म्यूनसिपैलिटी के आदमी को पूछा जाता है कि भाई क्या मामला है, आप लोग गड्ढे खोद रहे हैं और गड्ढे मूछते जा रहे हैं। तो म्यूनसिपैलिटी वाले आदमी बोलते हैं कि भाई हमारे 3 लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी, एक को गड्ढा खोदने की, दूसरे को उसके अंदर में बीज डालने की, और तीसरे को वापस गड्ढा मूछने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आज जो बीज बोने वाला है, बीज बोने वाले की जो है वो छुट्टी पर है, अब वो नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही रोल, बीज बोने का रोल जो है वो पेरेंट्स का है, सरपरस्त हजरात का है। यहाँ पर असातिज़ा तो गड्ढा खोद रहे हैं और बच्चे वापस उस गड्ढे को मूछ भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है असातिज़ा के मतलब पेरेंट्स जो है, सरपरस्त हजरात जो है, वो जो है उस बीज को बो नहीं रहे, उस बीज के अंदर में पानी नहीं डाल रहे। तो अगर ये काम तीनों भी अपनी अपनी जिम्मेदारी से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो बीज बोने के बाद में फल, पेड़ निकलेगा, उससे इंशाअल्लाह बहुत अच्छे फल हमको दरियाफ्त होंगे। तो ये इस आखिरी इसके साथ में गुजारिश के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम लोग जो है अपने बच्चों के ऊपर में खुसूसी फोकस करें, ताकि ये हमारे बच्चे जो है अपने मुस्तकबिल, हमारे खुद का भी मुस्तकबिल संवारें और इस कौम का भी मुस्तकबिल बेहतर करें। आमीन। जज़ाकल्लाह मोहतरम। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम इदरीस खान साहब को कि वो आए और अपने कीमती ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम इदरीस खान साहब। रब्बे शहरनी सदरी असली अमरी बहलो कौली मोहतरम सदर जलसा गुलाम साहब, यहाँ पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी मुफ्ती कलीम रहमानी साहब, मुफ्ती अब्बास साहब, अलियार खान साहब, इब्राहिम साहब, इस मदरसे के इंतज़ामिया की सदर मोहतरम अकील मिर्ज़ा साहब, रहमान साहब, शोएब खान साहब, साबिक सदर मुदर्रिस अब्दुल वहाब साहब, और इस मदरसे के सदर मुदर्रिस और असातिज़ा किराम, उसी तरह यहाँ पर मौजूद तमाम पेरेंट्स और यहाँ साथ में आई हुई है, बच्चों के साथ में आई हुई है हमारी बहनें, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा शमसुल उलूम किसी तारुफ या तारीफ का मोहताज नहीं। मदरसा शमसुल उलूम जो है ये गुज़िश्ता तकरीबन 55 सालों से अपनी पहचान बनाए हुए है। इस मदरसे की बुनियाद जो है हमारे बुजुर्गों ने, मौलाना इमामुल्लाह भाई साहब, फारूकी साहब, शेख साहब और उनके दीगर साथियों ने यहाँ पर इस मदरसे की बुनियाद डाली थी, और उनके दौर में ये मदरसा जो है यहाँ पर दीनी और असली तालीम दी जाती थी। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तालीमी जलसा यहाँ लिया गया है, उन हजरात के दौर में ये तालीमी जलसे जो है
वो आप जानते हैं पुसद में जो जामा मस्जिद के सामने का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में रात में ईशा के बाद वो इस तरह के जलसे तालीमी मुजाहरे वहाँ पर लिए जाते थे। और रात में सर्दियों में तकरीबन 12 बजे तक के पुसद के बहुत सारे लोग, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं रहते थे, बाकी दीगर हजरात भी पूरी अच्छी तरीके से वो प्रोग्राम समाप्त फरमाते थे। ये मदरसा दीनी और असली दोनों तालीम दी जाती थी, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं था। हमारे कुछ लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मदरसे को रिकॉग्नाइज किया, जिसका नतीजा आप सब लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं। दीनी तालीम के लिए हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती कलीम रहमानी साहब, इनका मदरसा तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और दीगर मदारिस भी हैं, वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ अच्छे तरीके से दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन असली तालीम भी लाजमी है, असली तालीम का होना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे मदरसे से जो बच्चे फारिग हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई बच्चे हमारे इंजीनियर्स बने, कई बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, यहाँ से निकले हुए कई फारिग हुए बच्चे वकील भी बने हैं। तो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा वो काम अंजाम दे रहा है। अभी आपने बच्चों का जो तालीमी मुजाहरा देखा, हमारे असातिज़ा ने काफ़ी मेहनत की, बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया, जिसके लिए मैं यहाँ के तमाम असातिज़ा कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम बच्चों ने भी जो यहाँ पर तालीमी मुजाहरा पेश किया, अपने अपने तराने पेश किए, ड्रामे पेश किए, इसके लिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपने दो वक्त यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह मोहतरम। अब मैं दावत देता हूँ हमारे काबिल एहतराम सदर जलसा जनाब गुलाम अहमद सर को इस शेर के साथ कि वो आए और सदारती कलिमात पेश करे कि देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, कि देखी न गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर बन के आफताब निकलना पड़ा मुझे, फिर बन के आफताब निकलना पड़ा मुझे। जनाब गुलाम अहमद सर। तेरा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाश करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। शुरू अल्लाह के उस पाक नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी सांसें हैं, इब्तिदा उस मालिक के हकीकी के नाम से जिसने बेरंग पानी से रंगीन फूल खिलाए, आगाज उस बाबरकत नाम से जिसने हमारे सीनों को धड़कनों से मामूर कर दिया। दिल को दम लेने की मोहलत भी वही देता है, दिल को दम लेने की मोहलत भी वही देता है और धड़कने की इजाजत भी वही देता है। बादशाहों को वो देता है, बादशाहों को वही देता है ये जाहो जलाल, हम फकीरों को किनात भी वही देता है। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द सना के बाद उस ज़ात अक़दस का जिक्र करना ज़रूरी है जिसके सबके और तुफैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तकलीफ फरमाई है। कलाम रुब्बा मुस्तफ़ा बलगर उला बे कमाल ही, ये असर है उनके जमाल का कि कशफ दुजा बे जमाल ही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी वो खिसाल ही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि। आज के इस सालाना जलसे इजलास के मेहमान खुसूसी
और मसनद पर तशरीफ फरमा तमाम मौजूद हजरात, इस इदारे के तमाम असातिज़ा इकराम और सदर मुदर्रिस साथी सरपरस्त जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो तमाम तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले तो इस इदारे को मुबारकबाद देता हूँ और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे हकीर शख्स को, मुझ जैसे नाचीज़ को मसनद सदारत पर मामूर फरमाकर उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की। असल में आज का ये जो जलसा है, ये तलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए रखा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर बेशुमार सलाहियतें होती है और वो पोशीदा सलाहियतें और उनके इजहार के मौके मदारिस के अंदर ही जो है तो बच्चों को फराहम किए जाते हैं। मदारिस इस दौर के अंदर ये एक ऐसे मजबूत किले है जो हमारे इन नस्लों के सरमाए की जो है कौम और मिल्लत के सरमाए की हिफाजत करते हैं। वाकई बच्चों का ये परफॉर्मेंस और उनका ये स्टेज डेयरिंग और उनकी ये सलाहियत ये इस बात की अलामत है कि इस इदारे के काबिल और होनहार असातिज़ा ने वाकई उनके ऊपर मेहनत की और उनकी मेहनतों से जो है तो ये आज ये समरा और ये फल जो हमको देखने को मिल रहा है। वाकई जिन इदारों के अंदर काबिल असातिज़ा होते हैं, वहाँ पर बच्चों की जो है नशोनुमा सही तरीके से होती है, बच्चों की सलाहियतों को उभारने के उनको मौके मिलते हैं और ये प्रोग्राम जो होते हैं ये हिर्स पैदा करते हैं, ये तहरीस पैदा करते हैं बच्चों के अंदर। एक दूसरे को देखकर इन सब बच्चे जो है ये अपने आप को जो है इसमें मुकाबले आराई में जो है अपने आप को तैयार करने की फिक्र करते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम मिसाली सरगर्मियों के साथ साथ ये तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि आज का जो तालीमी निज़ाम है और आज के जो तालीमी हालात है, आज के इदारे इससे बहुत दूर है। मैं मुबारकबाद देता हूँ शमशुल के तमाम असातिज़ा को, सदर मुदर्रिस हज़रात को कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद करके बच्चों की उन पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का एक मौका यहाँ इनायत फरमाया। वाकई ये मदरसे जो है गुलशन की मानिंद होते हैं और असातिज़ा का किरदार एक कलीमी किरदार होता है जो एक माली की हैसियत से होता है। जिस तरह गुलशन के फूलों के दरख्तों की निगहदाश्त करना और उसको सरसब्ज़ शादाब रखना माली की जिम्मेदारी होती है, उसी तरीके से असातिज़ा की जिम्मेदारी होती है कि वो इन बच्चों की जो है सलाहियतों को उजागर करने की फिक्र करें। हर बच्चा फितरी तौर पर अपने अंदर कुछ पोशीदा सलाहियतें रखता है। सलाहियतों में इख्तिलाफ हो सकता है, ज़हानत में इख्तिलाफ हो सकता है, कभी वो बेशी हो सकती है। हर बच्चा जो है मुतवस्सित ज़हन नहीं होता, कुछ आला ज़हन होते हैं, कुछ गैर मामूली ज़हन होते हैं, कुछ मुतवस्सित ज़हन होते हैं, कुछ कुल ज़हन भी होते हैं। लेकिन माहौल का सही फराहम होना और माहौल के जरिए उनकी निगहदाश्त करना यह मौलिम की अपनी जिम्मेदारी होती है। और ये इख्तिलाफ जो है कायनात की जो है खूबसूरती है। जिस तरह गुलशन की खूबसूरती मुख्तलिफ फूलों से, मुख्तलिफ रंगों के जो है तो आमेजिश से और मुख्तलिफ जो है खुशबुओं से बनती है, ठीक उसी तरह जो है यहाँ मुख्तलिफ सलाहियतों के बच्चों को परवान चढ़ाना और उनको जो है तो मुल्क और कौम के लिए तैयार करना यह असातिज़ा की जिम्मेदारी होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ असातिज़ा को और उन तलबा और तालिबात को भी और उन सरपरस्तों को भी कि जिनका भी एक अहम रोल रहा है अपने बच्चों की तरबियत में। और ये जो अमल है ये कोऑर्डिनेशन होता है असातिज़ा और सरपरस्तों के दरमियान, और जब तक ये कोऑर्डिनेशन कायम रहेगा, दोनों के अंदर हम आहंगी होंगी, दोनों का ताउन होगा, तो बच्चों की निगहदाश्त सही तरीके से होगी। मैं उसी तरीके से इस इदारे के इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये बात अगर यहाँ ना बोलूँ तो ये हक तलफी होगी कि वाकई मैं जो हालात देख रहा हूँ उन हालात में ये चुनिंदा इदारों में एक ऐसा इदारा है जो आज की खुराफात से पाक है, जहाँ किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात नहीं है, जहाँ किसी किस्म का कोई करप्शन नहीं है। वरना आज के हालात ऐसे है
कि असातिज़ा का तकर्रुर मेयार और लियाकत और काबिलियत पर नहीं होता, बल्कि असातिज़ा का तकर्रुर जो है वो पैसे के ऊपर होता है, पैसे की रेल पर होती है, और वहाँ मेयार को बालाए ताक रखा जाता है। जहाँ मेयार को बालाए ताक रखा जाता है वहाँ नस्ल बर्बाद हो जाती है। लिहाजा असातिज़ा की काबिलियत और उनकी लियाकतों के लिए मैं उनको मुबारकबाद तो देता हूँ, साथ ही जो है इस इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ, और तलबा और तालिबात को जिन्होंने अपना एक परफॉर्मेंस दिया और अभी ये प्रोग्राम जारी है, दरमियान में इस प्रोग्राम को रोककर जो है हम लोगों को बोलने का आपने मौका दिया। मेरी नेक ख्वाहिशात उन तमाम के साथ है, और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारी नस्लों को जो है दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दीन की भी जो है समझ दे, और उनको जो है तो अपने मकसद में कामयाब करे। बस इतना कहते हुए जो है मैं अपने सदारती कलमात का इख्तिताम करता हूँ। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह मोहतरम। मैं सदर जलसा और हमारे मेहमानान का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, सदर इंतजामिया, जमी सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक रिवायत है कि जो लोग मेहमान के तौर पर आते हैं उनका शुक्रिया अदा किया जाए। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने असातिज़ा किराम को इंतज़ामिया की इजाज़त से आज के जलसे को पेश करने का मौका दिया। बारगाह इज़्ज़ी में जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है। हमने तैयारियों के दौरान भी बार बार अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उससे इस्तिआनत तलब की, और अपने बच्चों से भी हमने यही कहा कि बेटा हम अपनी तैयारियां अपनी जगह, अपनी मेहनतें अपनी जगह, आप सब अपनी अपनी जगह अल्लाह से दुआ करें इनफरादी नमाजों में भी कि अल्लाह हमारी इस जलसे को कामयाबी से हमकिनार कर दे। इस मौके पर आए हुए तमामी खवातीन, मर्द हज़रात का, मेहमानों का, बतौर खास हमारे आज के सदर जलसा का जिन्होंने हमारी दावत को फौरी कबूल किया, इंतजामिया के हज़रात ने भी अपनी कामों को फारिग करके अपनी मसरूफियतों में से वक्त निकाला। अल्लाह ताला उनको भी खूब जज़ा दे और हमारी इन सारी कोशिशों को कबूल फरमा। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि आज का दिन भी और कल मज़ीद जो हमारे हाई स्कूल का जलसा होने जा रहा, उसको हर तरह की नजर बद से बचा और हर तरह के शर से, हासिदों के हज़रत से महफूज रखते हुए बखैर व खूबी अंजाम तक पहुंचा। अल्लाह आप तमाम को जज़ा दे, आप तमाम को जज़ाए खैर कसीर अता फरमा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।